Question number 1. In the given figure, ABCD and PQRC are rectangles and Q is the midpoint of AC. Prove that DP equal to PC and PR is equal to half of AC. देखो हमारा given क्या है? ABCD and PQRC are rectangles, right? Q is the midpoint of AC. Therefore, AQ is equal to QC. ये equal because Q is the midpoint of AC. तो प्रूफ क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? DP equal to PC. पहला प्रूफ. सेकेंड प्रूफ, PR is equal to half of AC. राइट? तो प्रूफ देखो. ABCD and PQRC are rectangles. ABCD and PQRS are rectangles, right? Therefore, एंगल D और A एंगल कितना होगा? रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री. एंगल D इक्वल टू QPC इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट ये दोनों एंगल क्या है? corresponding angles. Corresponding angles. Corresponding angles are equal. Therefore, line AD parallel to line PQ. Corresponding angles are equal in case of parallel lines. Therefore, AD line equal to parallel to PQ. Therefore, AD parallel to PQ. ये equation 1 रखो. Now in ABC triangle. Now in ADC triangle, इस triangle में P is the midpoint of DC. नहीं, P midpoint नहीं, sorry. Q is the midpoint of now in ADC triangle, Q is the midpoint of AC. ये हमारा गिवन है. अभी अभी प्रूव हुआ है PQ पैरेलल टू AD. Therefore, by converse of midpoint theorem, midpoint theorem का कन्वर्स क्या बोलता है? PQ line will bisect third side. PQ line will bisect DC, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. DP इक्वल टू PC हमारा पहला प्रूव हो गया. DP इक्वल टू PC हमें ये प्रूव करना था, हो गया. नाउ सी सेकेंड प्रूव है PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अभी PR ज्वाइन कर लो. PR QC क्या है? डायगोनल्स. PR and QC are diagonals of PQRC rectangle. तो एक रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होता है. Therefore, PR is equal to QC. But QC क्या है? QC is the half of AC because Q is the midpoint of AC. QC is half of AC. रीजन क्या है? Q is the midpoint of AC diagonal. Therefore, QC is equal to half of AC. तो QC किसके साथ इक्वल है? PR. PR is equal to half of AC. इधर QC half of AC के साथ इक्वल, बट QC PR के साथ इक्वल, तो इंस्टेड ऑफ QC राइट PR. तो PR is equal to half of AC. सेकेंड प्रूफ भी हमारा हो गया. Next question, question number 2. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. AB parallel to CD. M and N are midpoints of two non-parallel side AD and BC. AB का मेजरमेंट 12 cm, MN का मेजरमेंट 14 cm. फाइंड द मेजर ऑफ CD. CD का मेजरमेंट पूछा है. CD का लेंथ कितना होगा पूछा है. तो
तो सॉल्यूशन देखो, इन ABCD trapezium, AB parallel to CD, M and N are midpoints of AD and BC respectively, right? AB is equal to 12 cm, MN is equal to 14 cm. CD का मेजरमेंट पूछा है। एक चीज ध्यान से सुनो, लाइन सेगमेंट joining midpoints of two non-parallel sides is equal to sum of two parallel sides. ये एक थ्योरम है, ये ऑलरेडी हमारा प्रूफ भी हो चुका है। ओके, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड, हियर MN is the line segment joining midpoints of two non-parallel sides. AD, BC are non-parallel sides. M and N are midpoints of these two non-parallel sides. तो लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट मतलब MN का मेजरमेंट, MN is equal to half of is equal to half of sum of two parallel sides. टू पैरेलल साइड AB पैरेलल टू CD, टू पैरेलल साइड का सम का हाफ के साथ इक्वल है। तो MN हमारा कितना है 14, दैट इंप्लाइज 14 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB कितना है 12, CD हमें फाइंड आउट करना है। तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 28 इज इक्वल टू 12 प्लस CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 28 माइनस 12, 16 cm, राइट। तो CD का मेजरमेंट कितना मिला हमें 16 cm. Next question, in ABC isosceles triangle AB equal to AC, DEF are the midpoints of BC, AB, AC respectively, so that line segment AD is perpendicular to line segment EF and bisect it. क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ABC एक isosceles triangle in which AB equal to AC and DEF are the midpoints of BC, AB, AC. Now join AD line, EF line segment. हमें क्या प्रूव करना है, AD line segment is perpendicular to EF line segment. AD perpendicular to EF हमें ये प्रूव करना है। हमारा प्रूफ क्या है, प्रूफ है टू प्रूफ है EF perpendicular to AD. ओके, तो कैसे प्रूव होगा देखो, अभी इन एबीसी ट्रायंगल E एंड F है मिड पॉइंट्स, प्रूफ देखो, इन एबीसी ट्रायंगल E and F are midpoints of AB and AC. So therefore, according to midpoint theorem के हिसाब से EF is parallel to BC and EF is half of BC. अच्छा, इक्वेशन 1 करो, अगेन DE are midpoints, DE are midpoints of BC and AB. Therefore, by midpoint theorem के हिसाब से DE पैरेलल टू AC, देखो DE पैरेलल टू थर्ड साइड AC and DE इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये इक्वेशन 2।
Now D and F are midpoints of BC and AC. D and F are midpoints of BC and AC. तो क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखना होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखना होगा. ओके, DF पैरेलल टू AB, DF AB के साथ पैरेलल होगा, DF पैरेलल टू AB एंड DF इक्वल टू हाफ ऑफ AB. राइट, अभी AB इक्वल टू AC हमारा है, AB इक्वल टू AC. AB ये इक्वेशन 3 कर दो, 1 2 3. यहां पे AC है, यहां पे AB है. देखो AB यहां पे AC, हमारा गिवन क्या है? AB AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC हमारा गिवन है. तो AB इक्वल टू AC, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो हाफ ऑफ AB क्या है? AE. काय के लिए? E इज द मिड पॉइंट. ध्यान से देखो क्वेश्चन को, E इज द मिड पॉइंट, तो हाफ ऑफ AB के जगह पर AE लिखो, हाफ ऑफ AC के जगह पर AF लिखो. ये है इक्वेशन IB. अब ध्यान से देखो, DE यहां पे DF हाफ ऑफ AB, DF हाफ ऑफ AB, यहां पे DF हाफ ऑफ AB. देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. हमारा क्वेश्चन में गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. E is the midpoint of AB. Therefore, AE is equal to half of AB. Right? Also, F is the midpoint of AC. So, therefore, AF is equal to half of AC. होगा या नहीं होगा? देखो, E मिड पॉइंट है तो AB का हाफ AE, AC का हाफ AF. अब देखो, हाफ ऑफ AB इधर है, हाफ ऑफ AB भी इधर है, तो DF इक्वल टू AE हो जाएगा. Therefore, from these two equation, DF is equal to AE. Okay? Now half of AC इधर है, half of AC इधर है, तो AF इक्वल टू D हो जाएगा एंड AF इज इक्वल टू D. अब देखो, DF AE के साथ इक्वल है, AF D के साथ इक्वल, बट AE AF के साथ इक्वल है, AE AF के साथ इक्वल है. कैसे इक्वल है ना? हमें पता है AB इक्वल टू AC हमारा गिवन है, तो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो हाफ ऑफ AB मतलब AE इक्वल टू AF, हाफ ऑफ AC AF. AE AF के साथ इक्वल है. इधर हमारा DF AE के साथ इक्वल है, AF D के साथ इक्वल है. इसका मतलब दैट इंप्लाइज फ्रॉम ऑल द इक्वेशंस AE इक्वल टू DE इक्वल टू DF इक्वल टू AF. In AEDF quadrilateral, all sides are equal. In AEDF quadrilateral, all sides are equal. All sides are equal. Therefore, it is a what? Rhombus. It is a rhombus. और ये भी हमें पता है rhombus का diagonals are perpendicular bisector to each other. तो हमारा प्रूव हो गया, ये एक रंबस, रंबस का डायगोनल ADEF.
डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। क्या लिखना है हमें? डायगोनल्स ऑफ रंबस, diagonals of a rhombus are perpendicular bisector to each other, right? हमें क्या प्रूव करना था? AD bisect EF and AD perpendicular to EF. AD EF are the diagonals of ABCD rhombus. Sorry, ADF rhombus. Therefore, they are perpendicular and bisect each other, right? Next question. In the given figure, AD and BE are medians. AD, BE are medians of triangle ABC. B parallel to DF. B DF के साथ parallel है. Prove that CF equal to 1/4 of AC. हमारा given क्या क्या है? ABC triangle, AD, BE are medians लिखना होगा. Given in ABC triangle, AD and BE are medians. BE parallel to CD. टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ हमारा है CF इक्वल टू 1/4 ऑफ AC. CF इक्वल टू 1/4 ऑफ AC. तो प्रूफ देखो, मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल होगा ओनली ट्रायंगल. तो यहां पे एक ट्रायंगल देखो, BCE ट्रायंगल. इन BCE ट्रायंगल में D is the midpoint. D is the midpoint of BC. क्यों? AD is the midpoint. Therefore, sorry, AD is the median. तो D is the midpoint of BC. Median अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मीडियन AD, BD इक्वल टू मीडियन AD के वजह से BD इक्वल टू CD. Therefore, D is the midpoint. And DF parallel to B. DF parallel to B. Therefore, F is the midpoint of EC. नहीं होगा? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? सर बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये एक मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट विल बाइसेक्ट थर्ड साइड. ये कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय इसका मतलब क्या है? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ईसी का मतलब EF इज इक्वल टू FC बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है, राइट? अब देखो ये जो बी है, बी क्या है? मीडियन है. BE इज ए मीडियन. तो मीडियन ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो बी मीडियन मतलब AE इक्वल टू EC हो जाएगा. वेरी क्लियर. तो AE इक्वल टू EC. अभी ये जो AE है, AE का रखो EC. EC के जगह पर हम क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ AC, बिकॉज AC टोटल है. ये जो आधा है ये पूरा का हाफ होगा ना. EC इज द मिड पॉइंट, तो EC हाफ ऑफ AC. EC के जगह पर मैंने लिखा हाफ ऑफ AC. AE EC, तो EC के जगह पर मैंने हाफ ऑफ AC लिखा. तो AE लिखो, AE के जगह पर लिख दो, सुनो, AE इक्वल टू हमारा EC. ओके. अच्छा, अभी AE के जगह पर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC. कहीं के लिए E इज द मिड पॉइंट, तो AC का आधा AE है. तो AE के जगह पर हमने लिख दिया हाफ ऑफ AC. तो EC इज इक्वल टू EF प्लस CF. नहीं, ध्यान से देखो, EC इक्वल टू EF प्लस CF. पिक्चर से पूरा क्लियर. अच्छा, अभी EF CF के साथ इक्वल है. FC CF एक ही बात है. EF CF के साथ इक्वल है, तो लिख दो यहाँ पे ट्वाइस. EF के जगह पर CF लिखो, बिकॉज EF CF के साथ इक्वल है. तो CF प्लस CF इज इक्वल टू ट्वाइस CF. तो देयरफॉर इंप्लाई साइन दो, हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू ट्वाइस CF. अब ये 2 इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 ऑफ AC इज इक्वल टू CF. 1/4 ऑफ AC इज इक्वल टू CF. CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC. हमें ये प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया.
Next question. In the given figure, the side AC is produced to E such that CE is equal to half of AC. If D is the midpoint of BC and ED is produced to meet AB at F and CP and DQ are drawn parallel to AB, then prove that FD is equal to 1/3 of FE. क्वेश्चन को ध्यान से समझो. इस फिगर में साइड AC ABC इज ए ट्रायंगल. साइड AC इज प्रोड्यूस्ड टू E. AC E तक एक्सटेंड हुआ है. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. ED देखो ED is produced to F. ED को F तक एक्सटेंड किया गया है which will intersect AB at F. Then CPDQ parallel to BA. CP and DQ are drawn parallel to AB. तो CP parallel to DQ parallel to AB. Okay. Then prove that. हमें क्या प्रूव करना है? FD is equal to 1/3 of FE. तो हमारा पहले गिवन लिखो. गिवन क्या है? D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. CP parallel to DQ parallel to AB. ये हमारा ड्रॉन हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से. और क्या है? CE is equal to half of AC. ओके, इतना गिवन है. टू प्रूव क्या है? हमें क्या प्रूव करना है? FD is equal to 1/3 of FE. ध्यान से देखो FD दिस पार्ट इज 1/3 ऑफ FE. ये टोटल का 1/3 ये हमें प्रूव करना है. तो ये गिवन टू प्रूव हमारा हो गया. अब प्रूफ देखो. ABC ट्रायंगल में ABC triangle in ABC triangle, D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC and DQ parallel to AB and DQ parallel to AB. So therefore Q is the midpoint of AC. Therefore Q is the midpoint of AC by midpoint theorem. Midpoint theorem क्या बोलता है? Line segment joining two midpoints. Line segment joining midpoints of two sides is parallel to third side and half of third side. तो Q is the midpoint of C हो गया. by converse of midpoint theorem. कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? एक साइड का देखो, इस ट्रायंगल में DBC का मिडपॉइंट है, DQ AB के साथ पैरेलल है, तो DQ लाइन विल बाइसेक्ट थर्ड साइड. DQ लाइन विल बाइसेक्ट अनदर साइड या थर्ड साइड. तो DQ लाइन विल बाइसेक्ट AC. Therefore Q is the midpoint of AC. Therefore Q is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem. Right? आया समझ में? तो देखो ABC ट्रायंगल में DBC का मिड पॉइंट DQ AB के साथ पैरेलल है. Therefore DQ will bisect AC. It means AQ is equal to QC. Q is the midpoint of AC. This is the converse of midpoint theorem. Right? देखो अभी हमारा हो गया, अगर Q AC का मिडपॉइंट हो गया तो AQ is equal to QC. इक्वेशन 1. AQ is equal to QC. अभी ये जो C है हमारा गिवन क्या है? CE is equal to half of AC. ये हमारा गिवन है. CE half of AC. तो half of AC मतलब क्या हो गया? सपोज AQ, तो CU रखो. CE equal to AQ equal to QC because half of AC. Q तो AC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हाफ ऑफ AC AQ भी हो सकता है, CQ भी हो सकता है. Therefore C equal to AQ is equal to
QC। इक्वेशन 2 रखो, ये तीनों इक्वल हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये गिवन डाटा था, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया, तो गिवन डाटा के हिसाब से ये तीनों इक्वल हो गया, राइट। C इक्वल टू AQ इक्वल टू QC, QC इक्वल टू CE हो गया। इट मीन्स C इज द मिड पॉइंट ऑफ QE, QE का मिड पॉइंट C हो गया। देखो, therefore in DQE ट्रायंगल, अभी DQE ट्रायंगल के बारे में सोचो, कंसीडर करो DQ एंगल में क्या दिया है, हमारा जो CP है पैरेलल टू DQ, ये हमारा गिवन है। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, DQE ट्रायंगल, CP पैरेलल टू DQ हमारा गिवन है, CP पैरेलल टू DQ हमारा गिवन है, राइट। और C इज द मिड पॉइंट ऑफ Q, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ QE, राइट। देयरफॉर P क्या हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल है, दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, so therefore definitely this point will be midpoint of D, another side. Therefore P is the midpoint of D by converse of midpoint theorem, right? converse of midpoint theorem के हिसाब से हमारा DP P के साथ इक्वल हो गया, right? Since P is the midpoint of D, ये ऑलरेडी हमारा प्रूव हो गया, तो therefore DP will be equal to P, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा क्या है, C इक्वल टू AQ इक्वल टू QC। इक्वेशन 3 में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारा DP इक्वल टू P एंड CP पैरेलल टू DQ पैरेलल टू AB, ये हमारा गिवन है, राइट। CE इक्वल टू AQ इक्वल टू QC। इक्वेशन 3 बोलता है DP इक्वल टू P, CP DQ AB तीनों पैरेलल है, ध्यान से देखो, CP पैरेलल टू DQ पैरेलल टू AB, दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, ये इसके साथ इक्वल है, तो डेफिनेटली ये इसके साथ इक्वल होगा। मतलब अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, राइट। जैसे कि एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये पैरेलल है, ए लाइन पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ए लाइन पैरेलल है, ये इसके साथ इक्वल है, तो डेफिनेटली बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये इक्वल हो जाता है। सिमिलरली ये तीनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर, दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, तो डेफिनेटली दिस वन इक्वल हो जाएगा। Therefore FD इक्वल टू DP इक्वल टू P, ऐसा समझ में, ये पैरेलल, दिस लाइन इक्वल, देयरफॉर दिस लाइन सेगमेंट ये तीनों भी इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये इक्वल है, ए लाइन पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये इक्वल हो जाता है। तो इन दिस वे FD इक्वल टू DP इक्वल टू P, तो हमारा ये हो गया FD इक्वल टू DP इक्वल टू P। नाउ FE लंबा लाइन को देखो, FE इज इक्वल टू FD प्लस DP प्लस P, बट ये तीनों इक्वल है, तो DP का जगह पर FD लिखो, P का जगह पर भी FD लिखो, FD प्लस FD इज इक्वल टू थ्राइस FD, तो ओनली FD कितना होगा, FE इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ FD, तो ओनली FD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ FE, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। दैट वन वी हैव टू प्रूव, FD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ FE, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो ए स्क्वायर। स्क्वायर एक बना लो, पहले एक स्क्वायर बना लो,
ABCD is a square, right? Quadrilateral formed by the midpoints. AB का midpoint suppose P, Q, R, S. P, Q, R, S are midpoints of AB, BC, CD, AD respectively. अभी ये सारे midpoint को ज्वाइन कर लो तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है. P, Q, R, S क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. हमारा गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD. टू प्रूफ क्या है? हमारा टू प्रूफ है, हमें क्या प्रूफ करना होगा? PQRS. PQRS is also a square. ये हमें प्रूफ करना होगा. तो प्रूफ देखो वेरी सिंपल. स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री. ये तो स्क्वायर होता है ना. तो देखो अभी देखो दिस ट्रायंगल के बारे में सोचो. इस ट्रायंगल में AP इक्वल टू एस, बिकॉज AB इक्वल टू AD, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू AP, हाफ ऑफ AD इक्वल टू एस. अगर AB AD के साथ इक्वल है तो डेफिनेटली एस AP के साथ इक्वल होगा. देखो AB इक्वल टू AD साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है. तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD. तो हाफ ऑफ AB क्या है? एस, सॉरी AP, बिकॉज S एंड P आर मिड पॉइंट्स, तो इसलिए हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AD के साथ इक्वल होगा. AP AS, तो AP AS हमें मिल गया. P मिड पॉइंट है तो ये AB AD के साथ इक्वल है, तो इसका आधा AP इसका आधा AS, तो ये भी इक्वल हो जाएगा. अभी ए लाइन इक्वल हो गया, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स या अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है. सिंस AP इक्वल टू AS, देयरफॉर ASP एंगल विल बी इक्वल टू APS एंगल. क्या लिखेंगे रीजन हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज और अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, राइट. अच्छा, उसके बाद अभी ये इक्वल हो गया. इन ASP ट्रायंगल, एंगल A का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री. एंगल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है. तो ABCD इज स्क्वायर, तो एंगल A का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर. अच्छा, तो ASP, देयरफॉर ASP एंड APS दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, बिकॉज ऑल साइड इक्वल है, तो एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा. तो ASP APS के साथ नाउ ASP इक्वल टू APS, ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 45 डिग्री ईच. नहीं होगा? देखो टोटल 180 है, ये 90 है, बाकी ये 90 को छोड़कर और 90 तो ही बचा है, तो 90 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो. देखो ये कैसे मिलेगा? ASP इक्वल टू APS इज इक्वल टू 180 माइनस ये 90 अपॉन 2 की दोनों का वैल्यू इक्वल है इसलिए अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये मिला 45 डिग्री, ये भी हमें मिला 45 डिग्री. तो सिमिलरली दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. सिमिलरली it can be proved DSR is equal to 45 डिग्री, राइट. ए एंगल भी 45 डिग्री हो गया. तो ए एंगल का मेजरमेंट आप कितना होगा? सिंस ASD is a straight line, therefore PSR is equal to 45 180 से 45 प्लस 45 को सब्ट्रैक्ट करो
180 माइनस 45 प्लस 45, ये दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करो 90 डिग्री। तो पीएस एंगल, ये जो पीएसआर एंगल का मेजरमेंट हमें 90 डिग्री मिल गया। अब ये फोर साइड को हमें कैसे भी करके इक्वल करना है। कैसे इक्वल होगा देखो, इन एपीएस ट्रायंगल एंड डीएसआर ट्रायंगल, इन एपीएस ट्रायंगल एंड डीएसआर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल्स ऑफ स्क्वायर। और क्या है, एपी इक्वल टू डीआर, AB इक्वल टू DC, तो हाफ ऑफ DC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AP इक्वल टू DR। और क्या लिखना है, AS इक्वल टू SD, कहीं के लिए ना, S इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट, तो हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड। देयरफॉर APS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DSR ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो हमारा क्या इक्वल हो गया, बाय CPCT PS इज इक्वल टू S, PS इक्वल टू SR। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करके PS इक्वल टू PQ, SR इक्वल टू QR, QR इक्वल टू PQ। Similarly, by proving the congruence of APS triangle congruent to PBQ triangle, हमें क्या मिलेगा, PS इक्वल टू PQ, राइट, एंड PBQ triangle congruent to QRC ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम क्या लिख सकते हैं, बाय सिम्प्लिसिटी PQ इक्वल टू QR, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। देन SDR ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू QRC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम ये प्रूव कर सकते हैं QR इक्वल टू SR। यहाँ पे देखो QR SR PS PQ PS नहीं, QR SR PQ QR PS PQ PS SR। Therefore PQ is equal to QR is equal to SR is equal to PS. Four sides are equal and one angle का measurement 90 degree. Four sides are equal and one angle is is 90 degree. Therefore, PQRS quadrilateral is a square. Therefore, क्या लिखना है? Therefore, PQRS quadrilateral is a square. ये हमारा प्रूफ हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are points of trisection of the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Then prove that CQ is parallel to AP and AC bisects PQ. तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम, BD डायगोनल, P एंड Q, यहाँ पे P यहाँ पे Q, P एंड Q आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब BP इक्वल टू PQ इक्वल टू DQ। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में PQ BD लाइन को डिवाइड कर रहा है। अभी हमें क्या प्रूव करना है? AP, प्रूव दैट CQ इज पैरेलल टू AP, तो AP पैरेलल टू CQ हमें प्रूव करना है। AC ज्वाइन करो, AC बाइसेक्ट्स PQ मतलब दिस लाइन, दिस सेगमेंट इज इक्वल टू दिस सेगमेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, BP इक्वल टू PQ इक्वल टू DQ, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दिया है। अच्छा, और क्या है? टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ में हमें प्रूव करना है AP पैरेलल टू CQ एंड AC बाइसेक्ट्स PQ, मतलब दिस लाइन सेगमेंट दैट इज, हमें एक्चुअली क्या प्रूव करना है? ये O दे दो, OP
इक्वल टू ओ क्यू। अगर ओपी ओ क्यू के साथ इक्वल हो जाएगा तो पी क्यू को ऐसे बाइसेक्ट करेगा। तो प्रूफ देखो, इन ए बीपी ट्रायंगल एंड डीसीक्यू ट्रायंगल, इन ए बीपी ट्रायंगल एंड डीसीक्यू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में डीसी इक्वल टू एबी, डीसी इक्वल टू एबी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। और क्या है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स ए बी पी इक्वल टू सी डी क्यू, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये ट्रांसवर्स, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट। और क्या है, बीपी इक्वल टू डी क्यू, बीपी इक्वल टू डी क्यू, बीपी इक्वल टू डी क्यू हमारा गिवन है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ए बीपी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू डी सी क्यू ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से हो गया। तो देन बाय सिंप्लिसिटी एपी इक्वल टू सी क्यू हमारा हो गया, एपी इक्वल टू सी क्यू हो गया। अब देखो एपी इक्वल टू सी क्यू हो गया एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ऐसे ही साइड एंगल इक्वल होता है बाय सिंप्लिसिटी, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड एपीबी इक्वल टू सी क्यू डी। बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों हमारा प्रूव हो गया। अब देखो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, ऐसे 1 2 कर लो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। सिंस BD is a straight line, therefore angle 1 plus angle 2 is equal to 180 and angle 3 plus angle 4 is also 180। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। therefore angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4। but APB CQD, APB angle 1 CQD एंगल 4, एंगल 1 के साथ एंगल 4 इक्वल है। एंगल 1 ये एपीबी मतलब एंगल 1, CQD मतलब एंगल 4, एंगल 1 के साथ एंगल 4 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया हमारा, ये हमारा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 2 मतलब कौन सा एंगल, एपीओ इज इक्वल टू एंगल 3 CQO। बस ध्यान से देखो ये दो लाइन है, ये जो दो लाइन है ये सॉरी दो एंगल है, ये पेयर ऑफ एंगल को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स समझ में आ रहा है ना, ये दो लाइन है जो भी है ट्रांसवर्स, ये दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर एपी पैरेलल टू सीक्यू, एपी पैरेलल टू सीक्यू हमारा पहला प्रूव हो गया। एपी पैरेलल टू सीक्यू हमारा पहला प्रूव क्या था, एपी पैरेलल टू सीक्यू, पहला प्रूव हमें ये प्रूव करना था, एपी पैरेलल टू सीक्यू हो गया। नाम क्या प्रूव करना है, एसी बाइसेप्स पीओ सॉरी पी क्यू को एसी बाइसेप्ट करा। हमें सेकंड प्रूव हमारा क्या है, एसी बाइसेप्स पी क्यू मतलब ओपी इक्वल टू ओक्यू। ना ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, वेरी सिंपल, इन एओपी ट्रायंगल एंड डीओक्यू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में सीक्यू इक्वल टू एपी हमारा प्रूव हो चुका है, एपी इक्वल टू सीक्यू तो प्रूव्ड लिखो, प्रूव्ड हो चुका है। और क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 मतलब एपीओ इक्वल टू सीक्यूओ, ये भी इधर प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। और क्या है, एओपी इक्वल टू सीओक्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो साइड एंगल, ये साइड ये एंगल तो एंगल साइड, देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल के हिसाब से एओपी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू डीओक्यू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सिंप्लिसिटी ओक्यू इज इक्वल टू ओपी।
therefore bisecticity OP is equal to OQ। किसके वजह से OP OQ इक्वल हो गया? AC के वजह से। therefore AC bisects PQ, therefore AC bisects PQ, it is proved। लास्ट लाइन क्या लिखना है? therefore AC bisects PQ, proved। Next question in the given figure, PQRS is a parallelogram, SPQ is 60 डिग्री। SPQ ये टोटल एंगल 60 डिग्री, मतलब एंगल P का मेजरमेंट 60 डिग्री। बाइसेक्टर्स ऑफ P एंड Q, एंगल P एंड एंगल Q का बाइसेक्टर मतलब A एंगल इक्वल है, A एंगल इक्वल है। They are meet each other at A। Prove that point A is the midpoint of RS। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा गिवन क्या है? गिवन है PQRS is a parallelogram, SPQ एंगल P is equal to 60 डिग्री। SPQ मतलब एंगल P is equal to 60 डिग्री। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है AS is equal to AR। A is the midpoint of RS मतलब AS equal to AR अगर प्रूव हो जाएगा तो A will be the midpoint of RS। तो प्रूफ देखो, एंगल P is equal to 60 डिग्री बट एंगल S प्लस एंगल P is equal to 180 डिग्री। क्या रीजन है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, एंगल S प्लस एंगल P is equal to 180 डिग्री। राइट? अगर P 60 है तो S कितना हो जाएगा? 120। S 120 हो गया। नाउ इन दिस ट्रायंगल ये टोटल है 60 बट ये दोनों इक्वल है बिकॉज AP इज द बाइसेक्टर। तो ए एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 30 नहीं होगा। सिंस AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, देयरफॉर SPA एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 30 डिग्री। ये 30 हो गया मतलब ये कितना होगा? इन ASP ट्रायंगल, इन ASP ट्रायंगल में ए एंगल का मेजरमेंट, SAP का मेजरमेंट, SAP एंगल का मेजरमेंट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये 30 ये 120, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री नहीं होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। SAP इक्वल टू SPA, SAP इज इक्वल टू SPA इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। अगर ए एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर AS इक्वल टू SP इक्वल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज और अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। क्या लिखना है? opposite sides of equal angles, right? Opposite sides of equal angles। अब देखो ये दोनों, ये साइड इक्वल है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड AR इक्वल टू here। सिमिलरली मतलब को हमें प्रूव करना होगा। देखो ये 120 मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 120 पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल टू ये 60 मतलब ये कितना है? देखो इन ARQ ट्रायंगल एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज P का मेजरमेंट कितना था? 60। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम तो एंगल है 60। अभी ये 60 है, ये कितना है? 120 बिकॉज ये 120 मतलब ये 120। एंगल Q इज इक्वल टू 120। एंगल Q अगर 120 है तो ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? ए एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 60 हो जाएगा। देयरफॉर सिंस AQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, देयरफॉर AQR का मेजरमेंट 60 हो गया। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो इन दिस ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, इन दिस ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AR इक्वल टू AQ इक्वल टू QR। ओके,
अभी पहले हमारा क्या प्रूव होता है, एएस इज इक्वल टू एसपी। देखो एएस इज इक्वल टू एसपी हमारा प्रूव हो चुका है। अभी हमारा प्रूव हो गया एआर इक्वल टू क्यूआर। देखो एआर इक्वल टू क्यूआर प्रूव हो गया, बट ये जो एसपी है एसपी क्यूआर के साथ इक्वल है। देखो बट एसपी क्यूआर के साथ इक्वल है, क्यों ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। एस एसपी प्रूव हो चुका है, अभी एआर क्यूआर प्रूव हुआ, बट ये जो एसपी क्यूआर है, ध्यान से देखो, एसपी क्यूआर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा गिवन था, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, तो राइट लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज एएस इज इक्वल टू एआर। एएस इक्वल टू एआर मतलब A is the midpoint of RS. A is the midpoint of RS, हमें ये प्रूव करना था। Right? Next question, prove that an isosceles trapezium is always cyclic and its diagonals are equal. Isosceles trapezium, ABCD trapezium, it is isosceles one, मतलब AD इक्वल टू BC। नॉन पैरेलल साइड जब इक्वल होता है, दैट ट्रेपेजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो हमारा गिवन है ABCD इज ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होता है, ए एंगल भी इक्वल होता है, एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो प्रूफ क्या है, इट इज ऑलवेज साइक्लिक, इट इज ऑलवेज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा, देन इट विल बी साइक्लिक ट्रेपेजियम। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल ज्वाइन कर लो, एंड AC इक्वल टू BD, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, देखो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 बिकॉज AB पैरेलल टू CD। ये ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड, तो A प्लस D 180। बट एंगल C इक्वल टू एंगल D हमारा गिवन है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, तभी CD के साथ इक्वल, इधर C लिखो, एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। डायगोनली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होगा, दिस ट्रेपेजियम विल बी नोन एज साइक्लिक ट्रेपेजियम। देयरफॉर ABCD ट्रेपेजियम इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, इज ऑलवेज साइक्लिक। ओके, साइक्लिक हो गया, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो जाएगा, देन इट विल बी साइक्लिक। राइट, नाउ AC इक्वल टू BD प्रूव करना है। BCD ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल, इन ADC ट्रायंगल एंड BDC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में DC इक्वल टू BC कॉमन, और क्या है, AD इक्वल टू BC गिवन बिकॉज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और क्या है, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये भी गिवन। आइसोसेलेस वॉल लिखा है मतलब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ADC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BCD ट्रायंगल, देन बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal by CP, right?